everyone. I am Ashika and I welcome you on my YouTube channel. Today's topic is I'm going to show you a concept map of chapter number 2 is matter around us pure of class 9 science. So let's discover about this chapter and this map, concept map. The concept map that I have made is like this. I have bordered it with some glittering tape and I used the colorful pen and sketches for doing it. You can take a screenshot if you want. You can write it also. The next topic is today we are going to find out how we can find the valency of any object. For finding the valency of any object, we need to first have we need to know what is the atomic number it has. Today I'm only just having a 3 or a 4 example or any example 10, 5, it's my choice and I will be discovering it with you. So let's start. So I have told you that if you are doing or if you're finding any valency of an object or थिंग और एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का कोई वैलेंसी जानना चाहते हैं सो उसके लिए जो आपकी फर्स्ट थिंग होगी वो होगी यू नीड टू फाइंड आउट इट्स यू नीड टू नो अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर ओके एटॉमिक नंबर then you need to divide it, then you also knew about its proton electrons is not being able, but अगर आपको याद है तो it's very nice. And the next thing we need to separate the atomic number with a k with to k l m k shell l shell m and n shell. ठीक है, तो ये सारे शेल्स में आपको अगर उसे डिवाइड करना चाहना चाहिए आपको 2 मिनट में वैलेंसी निकल जाएगी. तो आइए शुरू करते हैं वैलेंसी निकालना. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन हैव द सिंबल ऑफ ओ सिंबल होता है ऑक्सीजन का एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 8. First of all, I have Bohr model. If you have read the Bohr model, so in that Bohr model, the Niels Bohr discovered that there is a nucleus between something like this. You can see from here. This is a nucleus, and it have a shell around it, and there are 4 shell around it that we name K shell, L shell, M shell, ये सब नेम दे रखे हैं and they have a unit that K shell is equals to 1, इतना तो this. So it covered. N shell is equals to N equal to 4, that is 4. So there is a sequence wise होता है. जैसे पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा K आता है, फिर L आता है, फिर हमारा M आता है. ओके, तो हमारे सीक्वेंस आता है, पहले K आता है तो K1, ठीक है, एंड देन हमारा न्यूक्लियस आता है तो न्यूक्लियस की सॉरी एल आता है, एल शेल तो हमारा उसका 2, देन एम आता है उसका 3 एंड देन एन आता है तो उसका 4. सो if you have your book, so check out your book and the page number 51. If you have a new book in which the chapter is related portion is not there, only the added portion, so it have been changed. So I have shown you the table that I am doing right now. This is the table. Please take out check. So I have taken oxygen. Okay, oxygen have O symbol, and its atomic number is 8. So first we need to divide into these four shells. तो कैसे डिवाइड कर दिया मैंने के शेल में. अब आप ये देख लीजिए कि के शेल में सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 आ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे हमारे के शेल में ओनली 2 आ सकते हैं. एल शेल में हमारे 8 आ सकते हैं. सिमिलर टू एम शेल में भी हमारे 8 आ सकते हैं, एन शेल में भी हमारे 8 आ सकते हैं. 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे. अब हम देखते हैं कि हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे. हमें बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बस. अब वी नीड टू डिवाइड इट, और डिवाइड जैसे कर लोगे इन्होंने पर्टिकुलर पार्ट में, तो यू आर एबल टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ दैट. सो वी हैव हियर, तो मैंने जैसे कि फाइंड आउट कर लिया
मैंने 8 होते, तो मैंने किस के में कितना रख सकते हैं, हम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? Yes, 2. How many electrons? 2. So we have taken the 2 electron in K shell. तो मैंने K shell में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए because I have 8 electrons. ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन सा शेल बचा है? L shell, M shell और L shell. अब देखो, अब आप बोलेंगे कि ये सारे ही फिल होने चाहिए ना शेल। नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही शेल आपके फिल होने ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एल में 2 रख लीजिए, एम में 2 रख लीजिए, नहीं। अगर आपने 2 रख लिया है के शेल में और बाकी आपके इतने हैं कि वो 8 से लेस है या फिर 8 है, यानी कि 8 है या फिर लेस देन 8 है, लाइक 7, 6, 5, so you need to put that particular electron in only one shell. अगर आपका के शेल फिल हो गया तो एल शेल में जाओ, एल शेल में भी 8 हो गए, कंप्लीट हो गया, फिर तो एम शेल में चले जाओ, एम शेल भी कंप्लीट हो गया, 8 फिल हो गए, तो एल शेल में चले जाओ। ठीक है, ऐसे है। एंड अब हमारा क्या गया, हमारा के शेल में हमारे 2 हो गए एंड एल शेल में मैंने कितने ले लिए? 6 ले लिए। सो जो भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होएगा, ठीक है, जो भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होएगा, अब देखिए जैसे कि अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है 0, 1, 2, 3, 4, ओनली टिल 4, अगर मेरा 0 to 4 है इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले, सो इट विल बी, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी जो लास्ट पे आएगा। बट अगर मेरे पास मेरे इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये इसकी वैलेंसी होगी। हम क्या करेंगे, जैसे 5 है तो उसमें हम कितना और ऐड करेंगे कि हमारा 8 उसमें आ सकता है? 3। 6 है तो उसमें हम लोग और कितना ऐड करेंगे कि हमारा 8 आ जाए? 2। 7 है तो उसमें हम कितना और ऐड करें कि हमारा 8 आ जाए? तो 1। अगर हमारा 8 ही है तो उसमें आएगा हमारा 0, क्योंकि 0 ऐड करने से हमारा 8 का 8 ही रहेगा। सो इट विल बी कि जो आप ऐड करेंगे, अगर आप 5 आपका लास्ट नंबर है, आपने 5 में आपको व्हाट यू नीड टू ऐड? 3, तो 3 इज द वैलेंसी। ऐसे ही हमारा 6 है तो 6 में लास्ट कितना हमें करना पड़ेगा? 2 और करने पड़ेंगे। सो हियर इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. Now let's understand out by writing on my notebook. You can see यहाँ पे मैंने लिया है कार्बन का, जिसका हमारा सिंबल होता है C, एंड इट हैव द एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6. अब हमारे कितने टाइप के सेल होते हैं? मैंने आपको बोला 4 शेल, तो हम लोग यहाँ पे शेल्स के नाम लिख लेते हैं, के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। तो हम लोग एम शेल लिखेंगे, एन शेल लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें नंबर पुटअप करेंगे, हम इसे सेपरेट करेंगे। जैसे हमारे पास 6 है तो 6 को पहले हम एक की शेल में सिर्फ 2 रहता है, ठीक है, 2 शेल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, 3, 4, 5 नहीं कर सकते, मैंने तो जो उसका मैक्सिमम है वो मैंने यहाँ पे रखा। एल शेल है हमारा, एल शेल में हम कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। बट अब मेरा कितना बचा है? 6 है, तो मेरा कितना बचा है? ओनली मेरा कितना बचा है? येस, I have only and only 6 cell more. So here the valency will be what? Tell me. Sorry, 6 नहीं, 4, ठीक है, 4 हो गया। So here's the valency will be 4, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को और भी वैलेंसी करनी है, जैसे कि अगर हमारा लास्ट में 4 है, 0 to 4, देखो 0 to 4 आए तो जो भी इनका लास्ट ये वाला नंबर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी। बट अगर हमारा ऐसे नहीं आया तो हमारा नहीं होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, जिसमें हमारा लास्ट 12 है, समझे। आर्गन हम ले लेते हैं, आर्गन में जिसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है आर्गन AR, एटॉमिक नंबर है इसका 18। इसमें हम बनाए थे के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, तो 18 के ही।
पहले हमारा जो केशवल है कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख दिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा शेल है, हमारा है एल शेल। इसमें अगर हम लोग 8 उठेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये हमारा 80, अब 8 फिर और बचा, तो हम लोग अब नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, हमें कुछ ऐड नहीं करना, तो हेयर्स द वैलेंसी विल बी 0, द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट इज 0। तो थोड़ा आपको नहीं समझ आएगा। सो अभी तो हमारा यहाँ पे मैंने आपको एक भी एग्जांपल से समझाया है, वैलेंसी समझाइए कैसे निकालते हैं, केशवल एडिशन सब बताया मैंने आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको 5 एग्जाम्पल कराऊंगी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, सो क्योंकि इसमें मैं ढंग से बता नहीं पाई बिकॉज आई हैव नोटेड माई फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा से मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाई और ढंग से लिख नहीं पाई, तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। बट मैं आपको इन माई नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट शो यू ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल। ठीक है, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।